Hallelujah. हालेलुया। So the Lord always loves his children. तो परमेश्वर हमेशा अपने बच्चों से प्रेम करता है And he is a very good father. और वो बहुत ही भला पिता है। He is not like a parent who will give birth to a child and leave them in a dustbin. और वो ऐसा पिता नहीं है कि वो अपने बच्चे को जन्म देता है और छोड़ देता है। The Bible says that we are the apple of God's eye. और परमेश्वर का वचन बोलता है कि हम उसकी आंखों की पुतली हैं And he will never leave or forsake us. और वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा ना त्यागेगा। And his people are very precious in his sight. और उसके लोग उसकी आंखों के सामने बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। But he is a God who also loves to see them grow. परंतु वो परमेश्वर है जो हमें आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है। So when I went back to my college, I had a group of my friends who were mostly South Indian. तो जब मैं अपने कॉलेज के समय पे जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मेरे पास में साउथ इंडियन दोस्त थे मेरे कॉलेज So में। when I went back to college, I knew to make omelette, I knew to make Maggie, I knew to boil water. तो मैं जब वहाँ पे गया तो मुझे ऑमलेट बनाने आता था, मैगी बनाने आता था और पानी उबालने आता I used to make chapatis with different world maps. था और मैं दूसरे नक्शों में रोटियां बनाया करता था। But when I was with them, I learned to cook from them. और जब मैं उनके साथ में था तो मैंने खाना बनाना सीखा। And one of the very good dish that I love was rasam. और जो बहुत ही सुंदर एक डिश था उनमें से एक वो था रसम। How many of you have tasted rasam? कितने लोग हैं जिसने रसम ट्राई किया है? Hallelujah, that's good. हालेलुया। So I really love the way they make rasam. और मुझे बहुत पसंद था जिस तरीके से वो रसम बनाया करते थे। And I used to stand by their side and watch how they make. और मैं उनके बगल पे खड़ा होता था और मैं देखता था कि वो कैसे उसे बना रहे And I हैं। have learned very beautiful dishes from them. और मैं उनके द्वारा मैंने बहुत सारे अलग अलग चीज़ों को बनाना सीखा। So in our Christmas time, after Christmas, my relatives came to my place. और क्रिसमस के बाद में मेरे रिश्तेदार लोग हमारे घर पे आए And I was making rasam because Prerna was sick. और मैं रसम बना रहा था क्योंकि प्रेरणा उस समय बीमार थी And I was making it for everyone. और मैंने सबके लिए मैं बना रहा था उस समय। But my niece, while I was making the rasam, my niece came and stood by my side. और जो वो मेरी रिश्तेदार की बेटी है वो मेरे पास में आई और मेरे बगल पे आके खड़ी हो गई And she was observing what I'm doing, what is the quantity and amount I'm putting. और वो देख रही थी कि मैं कैसे बना रहा हूँ और कितने मात्रा में मैं उसमें चीज़ें डाल रहा हूँ। And she said, I really like South Indian food and I want to learn to cook South Indian. और वो बोलने लगी कि मुझे ये साउथ इंडियन खाना बहुत पसंद है और मैं सीखना चाहती हूँ इसे। So I told her, I started to teach her that put this, now put this and do that. और उसके बाद में मैं उसे सिखाना शुरू कर दिया कि अभी ये डालो उसके बाद में ये डालो। And after she did all that, she was like, it's so easy. और ये सब डालने के बाद में उसे लगने लगा कि ये बहुत तो सरल है। And she said, if someone would come and teach me this, it would be more easy for me. तो फिर उसने बोला कि अगर कोई आ करके मुझे इसे सिखाएगा तो ये मेरे लिए और सरल हो गया। Don't we agree that? क्या आप इससे एग्री करते हैं? When someone comes alongside and teaches us some things, our life becomes easy. The things that we are doing becomes easy. और जब कोई हमारे साथ में आता है और हमारी मदद करता है उन सारी चीज़ों में तो हमारी सारी चीज़ें सरल हो जाती है। For example, if teacher in your class is telling that draw A like that just with her words, would you easily understand it? तो उदाहरण के लिए आपके अपने शिक्षक को देखेंगे तो वो आकर के आपको बोलेगा केवल वर्ड्स के द्वारा वचन के द्वारा आपको समझाएगा तो क्या आप उसे समझेंगे? You might try to draw it, but you will be confused what she's telling. और आप कोशिश करेंगे उसे बनाने का परंतु आप नहीं समझ पाएंगे क्योंकि वो क्या बोल रही है। But you remember when you were little, your teacher used to hold your hand and make you to do all the alphabets? पर आपको याद होगा कि आपके जो शिक्षक थे वो बचपन में छोटे थे तो आपके हाथों को पकड़ के ए लिखना ये सब सिखाते थे आपको। And it became so easy for us. और वो बहुत ही सरल हो जाता था And now हमारे today लिए। you can write ABCD. और आज के समय पे आप ABCD लिख सकते You हैं don't need anybody's help. और आपको किसी की आवश्यकता नहीं है। That is the power when someone comes alongside of you to teach you things. और ये वही सामर्थ्य है जब हमारे साथ में कोई आता है और हमें चीज़ों को सिखाता है। There are many times we say that, Lord, I want to love you. और बहुत सारे समय हम बोलते हैं परमेश्वर मैं आपको प्रेम करना चाहता हूँ Lord, I want to show forgiveness like you. और मैं आपकी तरह क्षमा करना चाहता हूँ Lord, I want to do your will. I want to be the source of life like you. और मैं आपके कार्यों को करना चाहता हूँ और आपके जैसे मैं एक रोशनी का श्रोता बनना चाहता But हूँ। Lord, I need help. I cannot do it on my own. परंतु मुझे आपकी आवश्यकता है, मैं अपने से ये चीजों को नहीं कर सकता हूँ। And when the Lord comes alongside और जब परमेश्वर हमारे साथ में आते हैं and He teaches you things, तो वो हमें नई चीजों को सिखाते it हैं becomes easy for us to do. और वो हमारे लिए सरल हो जाता है And करना। that is the power of और discipleship. यही है चेलापन की सामर्थ। So this morning the title of my sermon is Why Discipleship. और आज का सरमन है, आज की सरमन का जो टाइटल है वो ये है क्यों चेला बनना है। It is a very important aspect and doctrine in the church.
और ये बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्ट्रिन है हमारे कलीसिया के लिए। Jesus Christ built his church upon this doctrine. और पर यीशु मसीह ने अपने कलीसिया को इस डॉक्ट्रिन पे बनाया है। And we as a church need to get this doctrine right. और हम एक कलीसिया होने के नाते इस डॉक्ट्रिन को सही रीति से जानना बहुत ज़रूरी है। Because God does not do anything casual or does not do anything just like that. और क्योंकि परमेश्वर कभी भी कोई भी चीज़ों को ऐसे ही नहीं करता है। He is a God with purpose. He is a God with intentions. और वो परमेश्वर है जो चीज़ों को पर्पस के साथ में करता He है। is a God that does not joke around with the lives of his people. और जो अपने लोगों के जीवन से मजाक नहीं करता। So we as the believers, we as the disciples of Christ need to get it right. और एक विश्वासी होने के नाते और एक परमेश्वर के चेले होने के नाते हमें इसे जानना बहुत ज़रूरी है। Because if we do it wrong, we will build our life on wrong things. और अगर हम इसे गलत तरीके से करेंगे तो हम अपने जीवन को एक गलत चीज़ों पे बना रहे हैं। But how good it is that Lord corrects our understandings and renews our mind. और ये क्या ही अच्छी बात है कि परमेश्वर हमारे समझ को करेक्ट करता है। So last Sunday we saw the sermon that was titled Spiritual Awakening. और पिछले रविवार को हमने देखा जिसका टाइटल था आत्मिक जागृति। And we heard that Jesus Christ came into this world to awaken us from the spiritual death that we were in. और हम देखते हैं कि यीशु मसीह हमारे संसार में आया कि हमें आत्मिक जागृति हमारे बीच में लेकर आए। We were dead because of the sins that we were in. और हम पापों के द्वारा मरे हुए थे We were separated from God. और हम परमेश्वर से दूर थे। We did not know Him. हम उसे नहीं जानते थे Our sins kept us away from और God. हमारे पाप हमें परमेश्वर से दूर रखा था। God tried to make provisions. और परमेश्वर हमारे लिए प्रोविजन करने की चाह But रहा man था। was failing again and again and again. पर मनुष्य बार बार गिर रहा था। No matter how much sacrifice they do, the blood was never enough. और कितना भी बलिदान उन्होंने दिया परंतु वो लहू कभी भी काफी नहीं The था। blood of those animals were not enough. They didn't have that power to take away the sin और completely. उन जानवरों का लहू कभी भी काफी नहीं था जो उस पाप को दूर कर पाता। But Jesus came as the Lamb of God. परंतु परमेश्वर आया उस मेमने के समान। Because the Bible says, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal क्योंकि life." बाइबल बोलती है क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई इस पे विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। And because of what Jesus has done on the cross, now we are reconciled to God. और जो कि यीशु मसीह ने हमारे लिए किया इसीलिए हम यीशु मसीह से परमेश्वर से वापस मिलने पाए हैं। And now our relationship with the Father has been restored. और पिता से हमारा जो रिश्ता था वो वापस से जुड़ने लगा है। We have been born into the kingdom of heaven. और उस स्वर्ग के राज्य के लिए हम दोबारा से जी उठे हैं। So we heard that Jesus brought spiritual awakening. और हमने देखा कि यीशु ने आत्मिक जागृति को लेकर And के आया। Jesus spiritually awakened us to life. और यीशु ने हमें आत्मिक जागृति को लेके आया हमारे We लिए। also heard that Jesus came to transform us from sinner to saint. और हमने देखा कि यीशु मसीह आया हमें उस पापी से एक संत बनाने की ओर पे। We heard that spiritually awakened people love more. और हमने देखा कि आत्मिक जागृत लोग और भी ज्यादा प्रेम करने वाले होते We हैं। heard that spiritually awakened people, they bring life और हमने देखा कि आत्मिक जागृत लोग जीवन को लाते हैं and they become the source of life. और वो जीवन का श्रोता बन जाते हैं। But my question to you this morning is, does that happen on the day when you meet Christ? और बट मेरा सवाल ये है कि क्या ये तब हुआ जब आप परमेश्वर से यीशु मसीह से पहली बारी मिले? The day you meet Christ, do you become a saint? क्या उस दिन जिस दिन आप परमेश्वर से मिले क्या उस दिन आप संत बन गए? When disciples met Christ, they were spiritually awakened. परंतु जब चेले उनसे मिले थे वो आत्मिक जागृत थे They were saying to one another, "Come, we have found the Christ." और वो एक दूसरे से बोल रहे थे कि चलो हमने परमेश्वर को पा लिया। They said that, "Lord, you have the words of life." और वो बोलते थे कि परमेश्वर आपके पास में ज्योति का वचन है। But did the disciples become saints on the day one? तो क्या उस दिन चेले लोग संत बन गए? Did they start to cast out demons, heal the sick the day they met Christ? क्या वो उसी समय दुष्ट आत्माओं को निकालने लगे जिस दिन उन्होंने यीशु मसीह से मिले? The answer is no. उसका उत्तर है नहीं। Disciples were Jews, they knew the law. और जो चेले लोग थे वो यहूदी थे और वो वचनों को जानते थे But they were dead in a religion. परंतु वो उस धर्म में मरे हुए थे। But when they met Christ Jesus,
परंतु जब वो मसीह से मिले they were awakened to a relationship with God. और उनके अंदर परमेश्वर से एक रिश्ते की जागृति आ गई, It was in their relationship with Jesus that they got transformed. क्योंकि उनके जो रिश्ते थे परमेश्वर के साथ में, उसके द्वारा उनके अंदर में जागृति आई और वो बदले। And in this relationship with Jesus, they went through a process that is called discipleship. और इसी रिश्ते के बीच में जब हम देखते हैं तो ये रिश्ता जो था वो एक चेला बनाने का रिश्ता था। So we all want to be like the apostles. We all want to be like the disciples in the Bible. हम सभी उन चेलों के समान बनना चाहते हैं, उन प्रेरितों के समान बनना चाहते हैं। We want to have faith like them. हम उनके समान हमारे अंदर विश्वास चाहते We हैं। want to have intimacy with God like them. हम परमेश्वर के साथ में उतनी घनिष्ठता चाहते We हैं want to do great exploits for God like them. और हम परमेश्वर के लिए उतनी ही बड़े बड़े कार्यों को करना चाहते We हैं want to have unconditional devotions to Christ like them. और हम परमेश्वर के प्रति उतना ही ज्यादा धार्मिकता को चाहते हैं। Some even wants the title apostle like them. और कुछ लोग प्रेरितों के उस टाइटल को भी चाहते हैं, But no one wants to do what they did. परंतु वो ये नहीं करना चाहते जो उन्होंने किया था। And that is no one wants to give into discipleship. और इसीलिए क्योंकि वो चेला बनने की प्रक्रिया में नहीं जाना चाहते। Now you see, because of the disciple with Jesus, they become from fishermen to the fishers of men. तो इसमें हम देखते हैं कि जब उन्होंने अपने आप को चेला बनाने की प्रक्रिया में दिया तो वो मछुआरे मछलियों को पकड़ने नहीं, परंतु वो मनुष्यों के मछुआरे बने। They changed from disciples to apostles. तो वो लोग एक चेले से प्रेरितों में बदल गए। Their name was taken from the census register to the name written on the 12 foundation in New Jerusalem. तो उनका नाम उस जनगणना से बदल करके उस नई यरूशलेम की किताब में लिखी गई। That is the power of और discipleship. ये है चेलापन की सामर्थ्य। Oh, how wonderful and glorious is discipleship. और ये कितना ही अच्छा और भला है चेला बनाने की प्रक्रिया। We all heard about spiritual awakening. और ये हम सभी ने देखा आत्मिक जागृति की प्रक्रिया It को। was how the church was born. और इसी प्रकार से कलीसिया का बर्थ हुआ। But how do you sustain and continue in spiritual awakening? और परंतु किस तरीके से आप उसमें सदैव बने रहेंगे? Please read with me Acts chapter 2 from verse 40 to verse 42. प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय 40 और 41वां वचन को हम पढ़ेंगे। Yes, and it says, and with many other words he testified and exhorted them, saying, Be saved from this perverse generation. Then those who gladly received his word were baptized. And that day about 3,000 souls were added to them. And they continued steadfastly in apostles' doctrine and fellowship, in the breaking of bread and in prayer. उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3,000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति पाने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। Amen. आमीन। So you see, the church was born, there was spiritual awakening. तो आप देख सकते हैं कि जब कलीसिया का जन्म हुआ तो वहाँ पे आत्मिक जागृति थी, But it didn't stop there. परंतु वो वहाँ पे रुका नहीं। How did it continue? और वो कैसे आगे जारी रहा, How did it went for a very long run? और वो कैसे उस दूर की यात्रा पे रहा। The Bible gives us the answer that they continued steadfastly in apostles' doctrine and fellowship, in the breaking of bread and in prayer. और वो वचन उसका उत्तर देता है कि वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। And if I summarize all this in one word, और जब हम इसे एक शब्द में जब हम उसे समराइज करते हैं the word is discipleship. तो उसका वर्ड है एक चेला बनना। They did not knew Christ. तो वो यीशु मसीह को नहीं जानते थे, They repented and accepted him as Lord and Savior. परंतु उन्होंने पश्चाताप किया और उन्होंने अपने को उद्धारकर्ता के रूप में उन्हें स्वीकारा। But it didn't stop there. परंतु वो वहाँ पे रुका नहीं। They continuously gave themselves to the apostle doctrines, which is the teaching of Lord Jesus Christ. और उन्होंने अपने आप को हमेशा देते रहे प्रेरितों की शिक्षा पाने के लिए कि वो मसीह में और आगे बढ़े। They were with the other disciples, वो और भी अलग चेलों के साथ में थे learning what Jesus has taught them, और यीशु मसीह ने जो उन्हें सिखाया था उसे वो सीख रहे थे। unlearning the philosophies and the doctrines in their minds. और जो फिलॉसफी और जो डॉक्ट्रिन्स उनके मन में थी उसे वो हटा रहे थे। And it's very important what it says, that they continued in fellowship.
और ये बहुत अच्छा वचन बोलता है कि वो हमेशा संगति में बने रहे। It was not one day seminar that they attended. और वो कभी केवल एक दिन का सेमिनार नहीं था जिसको उन्होंने अटेंड किया, It was continuously happening in fellowship and giving themselves to the doctrines of Christ. परंतु वो जो संगति थी वो जारी रही, कंटिन्यू, और वो उस डॉक्ट्रिन को जानने लगे। And the word of God says, and Lord added into the church those who were being saved. और उसका जो वचन बोलता है कि परमेश्वर ने उसमें और भी लोगों को जोड़ा जो कि उसमें से परमेश्वर के उद्धार को पाया So उन्होंने। this was the ongoing process. और ये एक चलता फिरता एक प्रक्रिया है। So the question in front of us this morning is, what is discipleship? तो हमारे पास में एक सवाल है कि ये चेलापन क्या है। So discipleship is made up of two things, तो चेला बनने की प्रक्रिया दो चीजों से बनती है, the discipler and the disciple. एक डिसाइपलर और डिसाइपल। So what is a disciple? तो ये डिसाइपल क्या है? He is a student or a learner. तो वो एक सीखने वाला व्यक्ति है, He is a student. और वो एक विद्यार्थी है। But Jesus put in this simple word a very deep meaning. परंतु यीशु ने इस छोटे से वचन में एक बहुत ही गहरा मतलब दिया है। This disciple is a student who accepts the teaching of Christ not only in his belief but in his lifestyle. तो ये जो चेला है वो केवल अपने पूरे जीवन भर में एक विद्यार्थी सीखेगा। And disciple is found 269 times in New Testament and Christian is only found only 3 times in the Bible. तो जो चेला शब्द है वो 69 उनहत्तर बार पाया गया है बाइबल में, परंतु जो एक क्रिश्चियन वर्ड है, मसीही वर्ड है, वो केवल 3 3 times. बार पाया गया है। So you see the depth and importance of disciple in Bible. तो आप देख सकते हैं कि वो कितनी गहरी बात है इस चेलेपन के बारे में। And what is a discipler? और वो डिसाइपलर वर्ड का मतलब क्या है? Who is a discipler? वो कौन है? He is a fruitful, spiritual, mature person who has grown in scripture and in their relationship with God. एक आत्मिक रीति से मैच्योर व्यक्ति है जो कि वचनों में बढ़ा है और वचनों को सीखा है जिसने। So now we come to understand what is discipleship. और अब हम उसको समझते हैं कि ये चेला बनने की प्रक्रिया क्या है। It is a relational process in which the disciple involves himself to accept the teachings of the teacher and practice them. तो ये एक रिश्ते की प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम शिक्षा को लेते हैं और उसको हम उपयोग में लाते हैं। It's a relational process. Please let me be clear this morning. और मैं इसमें सीधा बोलना चाहता हूँ कि वो एक रिश्ते की प्रक्रिया है। It's not a seminar type of relationship वो एक सेमिनार टाइप का रिश्ता नहीं है where you come just one day, receive teachings and go. No. कि आप केवल एक दिन आते हैं, शिक्षा को प्राप्त करते हो, चले जाते हैं। Discipleship is a relational process चेलापन की प्रक्रिया एक रिश्ते where you की spend प्रक्रिया time है with your discipler, कि जब आप अपने विद्यार्थी के साथ में समय बिताते हैं, where you spend time with the discipler who disciples you. तो आप जो डिसाइपलर है उसके साथ में आप समय को बिताते हैं। And we see in the definition that they accept the teachings of the teacher. और हम इसमें देखते हैं कि वो अपने शिक्षक की शिक्षाओं को ग्रहण करते हैं। Who is our teacher? हमारा शिक्षक कौन है? Lord Jesus Christ. यीशु मसीह हमारा, He is our ultimate teacher. वही हमारा शिक्षक है। He says there is no other teacher than Christ. तो वो वचन बताता है कि उसके अलावा, यीशु मसीह के अलावा कोई भी हमारा शिक्षक नहीं है। So discipleship is not man's principle but God's principle. चेलापन केवल मनुष्यों का प्रिंसिपल नहीं है परंतु परमेश्वर की। We need to be very clear about this in our और understanding. हमें इसे बहुत ही क्लियर रखना है हमारे दिमाग Discipleship में। originated from the very heart of God. तो ये डिसाइपलशिप है, जो चेलापन है वो परमेश्वर के हृदय से निकल How के do आई I है। know that? वो हम कैसे जानते हैं? Read with me Deuteronomy chapter 6 from verse 4 to 7. व्यवस्था विवरण उसका 6वां अध्याय 4 से 7 हम पढ़ेंगे। I would request Jenny if she could read for us that verse. Someone can open Isaiah chapter 48 verse 17. I request Jessica to read that for us. यशायाह 47 उसका 48 chapter verse 17. 48 उसका 17वां वचन भी कोई And पढ़ेंगे। Psalms verse chapter 32 verse 8. Joy Bhai can read for us. भजन संहिता 32 उसका 8वां। Yes. So Deuteronomy chapter 6 4 to 7. व्यवस्था विवरण 6। Yes. Yes. Amen.
Yes, let's read Isaiah chapter 48, verse 17. Isaiah 48, verse 17. Yes. Yes. Till then, let's read Psalms chapter 32, verse 8. Hallelujah. हालेलुया। So we read in the word of the Lord that the Lord is giving instructions that you need to teach my law to your children. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने अपने लोगों को चेतावनी दे रहा है कि तुम मेरे लोगों को मेरी शिक्षा को बताओ। You shall talk of them when you sit in your house and when you walk, और जब आप अपने घरों पे बैठते हैं या आप चलते हैं तो आप इसके बारे में बातें करें। when you lie down and when you rise up. और जब आप लेटते हैं या आप उठते हैं So this is called discipleship. तो इसे बोला जाता है चेलेपन की You प्रक्रिया। don't only keep it to yourself, you teach it to others. केवल वो आप अपने लिए नहीं रखते परंतु आप दूसरों को भी बताते And हैं। God says that I will instruct you and I will teach you in the way that you should go. और ये वचन बताता है कि मैं तुम्हें सिखाऊंगा और तुम्हें आगे बताऊंगा कि तुम्हें कैसे आगे बढ़ना God is है। entrusted to grow his children. और परमेश्वर चाहता है आपकी उन्नति में। Isaiah chapter 48, verse 17. Amen. So you see, God Himself is entrusted in the way that you should go. God is entrusted to build your life in the right way. तो हम देखते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में रुचि रखता है कि आप किस तरीके से आगे बढ़े और किस तरीके से आगे की ओर बढ़ें। There are many examples in the Bible of ऐसे discipleship. बहुत सारे उदाहरण हैं चेले बनने की। For example, Moses and Joshua, और हम देखते हैं मूसा और यहोशू के बारे में, Elijah and Elisha, एलिया और एलीशा, Lord Jesus and His 12 disciples, और यीशु मसीह और उसके 12 चेले, apostles and the early church, प्रेरित और उनके कलीसियाएं, Paul with the disciples in the Damascus. पौलुस और उनके जो चेले हैं दमिश्क में। Let's read Acts chapter 9, verse 19. और हम प्रेरितों के काम उसका 9वां अध्याय उसका 19वां वचन पढ़ेंगे। I would request Joanna if she could read for us. Acts chapter 9 and verse 19. Yes. और Amen. उसके आगे बोलता है कि वो कई दिनों तक अपने चेलों के साथ रहा। Amen. So Paul, when he was spiritually awakened, he did not start his ministry. तो हम देखते हैं कि पौलुस जब आत्मिक रीति से जागृत था तो उसने तुरंत ही वचन बांटना शुरू नहीं किया। He spent times with the disciple to understand what is this doctrine. और वो चेलों के साथ बैठा और उसे समझने की कोशिश किया कि ये क्या बोलता है And वचन। then he went out and preached in a synagogue that Christ is the Savior. और उसके बाद में वो आगे बढ़ा और सिनेगोग में जाकर के परमेश्वर के बारे में बातें किया। We found example in the Bible of Paul and Timothy. और हम जब देखते हैं पौलुस और तिमुथी के बारे में जब हम बातें करते हैं, That is an example of discipleship. और वो एक चेला की बहुत अच्छा उदाहरण है। But why does a believer need discipleship? तो बट क्यों एक विश्वासी को चेलापन की प्रक्रिया से होके जाना This morning चाहिए? I would like to give you 5 reasons why a believer need और discipleship मैं in their life. आपको आज 5 चीजों को बताना चाहूंगा कि हमें क्यों एक चेलापन की प्रक्रिया से जाना जरूरी है। The first reason is to fill the earth with God's character. तो जो पहला रीजन है कि हमें परमेश्वर के कैरेक्टर से इस पूरे संसार को भर देना है। So God, when He created man, said, "Let us make man in our likeness and in image." तो जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो उन्होंने बोला कि हम इन्हें अपने स्वरूपता और समानता में बनाएंगे। But man, because he sinned, he lost that likeness and image of God. परंतु मनुष्य अपने पापों के कारण परमेश्वर के उस चरित्र को और उसकी एक इमेज को खो दिया। So man was filled with bitterness, angry. Man became sinful and wicked. और जो मनुष्य था वो एक पापी बन गया और दुष्ट बन गया। So God did a solution through the cross. तो लेकिन परमेश्वर ने उस क्रूस के द्वारा एक सॉल्यूशन को लेकर के आया। God began to restore mankind.
और परमेश्वर ने उस मनुष्य जाति को सुधारने की कोशिश की back करने into लगा his image and into his likeness. और उसकी स्वरूपता और समानता में लाने के लिए। And God wants that likeness to fill the earth. और परमेश्वर चाहता था कि वो उनकी स्वरूपता इस पूरे संसार में भर जाए। The love of God, the mercy of God, the forgiveness of God should fill the earth. परमेश्वर की प्रेम, परमेश्वर की क्षमा पूरे इस संसार में भर जाए। So how we'll grow into that? ताकि तो हम उसमें कैसे बढ़ने It's पाएंगे? through discipleship. वो केवल एक चेलापन की That प्रक्रिया doesn't के come द्वारा, from flesh. जो कि हमारे शरीर से नहीं आता। It has to be taught. ये चीज हमें सीखना होगा। The second reason to expand the kingdom of God and the culture of wholeness and freedom. तो दूसरा कारण ये है कि परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना और संपूर्णता और आजादी में हमें बढ़ना। We see in the Bible that Jesus returned in the power of the Holy Spirit and he began to preach, repent for the kingdom of God has arrived. तो हम देखते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह जब वापस आया उस परमेश्वर की सामर्थ में, तो वो बातें करने लगा कि तुम मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। And the culture of the kingdom of heaven is filled with wholeness and freedom. और स्वर्ग का राज्य एक संपूर्णता और आजादी से भरा हुआ है। So that is what the disciples need to do in discipleship. और यही चीज एक चेले को करना है एक चेलेपन की प्रक्रिया में। We need to grow so we can expand the kingdom of God and maintain the culture of the kingdom of God on this earth. और हमें और आगे बढ़ना है इसमें और इसको हमें मेंटेन रखना है इस संस्कृति को आगे। It doesn't just finish with the conferences we attend, it continues in our life. वो केवल इस कॉन्फ्रेंस के द्वारा खत्म नहीं होना है, परंतु वो हमारे जीवन के द्वारा और जारी रहना है। Wholeness and freedom is just envisioning us how we need to live our lives. और संपूर्णता और आजादी केवल हमें आगे की दशा को बताता है कि हमें कैसे आगे जीना है। But how we need to live is through discipleship. परंतु हमें आगे कैसे जीना है वो केवल एक चेला बनने की प्रक्रिया How के we द्वारा need to है। expand the kingdom of God as disciple, we learn in discipleship. और वो हमें आगे कैसे बढ़ना है वो हम केवल इस चेला बनने की प्रक्रिया के द्वारा सीख सकते हैं। The third reason why we need discipleship is to share the good news and make disciples. और तीसरा कारण ये है कि उस परमेश्वर के गुड न्यूज़ को बांटना और आगे हमें चेला बनाना। Jesus says in Matthew chapter 28 from verse 18 to 20 that all authority has given to me in heaven and in earth. मत्ती 28 उसका 18 से 20 बोलता है कि सारी अथॉरिटी मुझे दी गई है स्वर्ग में और इस संसार में। Therefore go out and make disciples and baptize them in the name of the Father, Son and the Spirit. ताकि बाहर जाओ और यीशु मसीह के नाम से चेला बनाओ। And he says that teach them all the things that I have taught you. और आगे जाकर के इन सारी चीजों को आगे सिखाओ जो कि मैंने तुम्हें सिखाया है। And lo, I am with you to the end of the age. और मैं तुम्हारे साथ में हूँ इस संसार के अंत तक के। So we need discipleship so we can grow into the good news and we can disciple others. और हमें इसे चेलापन की आवश्यकता है क्योंकि हम उस गुड न्यूज़ को आगे जाकर के बताएं और भी चेलों को बनाएं। Don't just keep the spiritual awakening to yourself and what you are enjoying to yourself, but teach it to others. तो उस आत्मिक जागृति को अपने अंदर तो ना रखें परंतु जा करके दूसरों को भी आप बताएं। And then Jesus says in Acts chapter 1 verse 28 that we have to be the witness of Christ in all the earth. तो प्रेरितों के काम उसका 1:18 में बोलता है कि तुम जाओ और परमेश्वर के वचन को पूरे संसार में फैलाओ। Discipleship helps us to be the right witness of Christ in the earth. और चेलापन की प्रक्रिया हमें बताती है कि हमें इस संसार में कैसे सही रीति से आगे बढ़ना है। Mahatma Gandhi once said that I love your Christ but I don't like your Christians. और महात्मा गांधी ने एक बार बोला कि मैं परमेश्वर को प्रेम करता हूँ परंतु मैं उनके मसीही लोगों को प्रेम नहीं करता हूँ। Because they have been the wrong witnesses of Christ in this earth. तो यहाँ पे बोलता है कि हम लोग ने सही रीति से अपने गवाही को नहीं दिया है एक मसीही होने के They're not नाते। carrying the image that Jesus actually has because of the life that they are living. और परमेश्वर की उस स्वरूपता को हम अपने जीवन पे नहीं दिखा पा रहे हैं अपने जीवन के द्वारा। And that's why people don't like Christ. और इसीलिए लोग मसीह को ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। But when you met Christ, how was your experience with परंतु him? जब आप मसीह से मिले थे तो आपका अनुभव कैसा था? When people meet you, how is their experience with them? तो जब लोग आपसे मिलते हैं तो उनका क्या अनुभव होगा? Do they meet Christ or do they meet a selfish man? तो क्या वो एक मसीह से मिलते हैं या एक मतलबी व्यक्ति से मिल रहे We हैं? have built our lives in so much of wrong beliefs and wrong belief system and wrong philosophies that we are representing wrong Jesus to the world. और हमने अपने जीवन को इस बहुत सारे गलत डॉक्ट्रिन से गलत बातों से हमने भर रखा है। The Christ who is filled with mercy, the Christ who is filled with grace and love cannot be seen
seen in our life. और मसीह जो प्रेम से भरा हुआ है, दया से भरा हुआ है, वो हमारे जीवन से दिखना चाहिए। So to be the right witnesses of Christ, we need discipleship. तो एक सही गवाही होने के लिए हमें परमेश्वर से सही रीति से मिलना होगा। The last reason why we need discipleship is to be in the image of Christ. और तो जो आखिरी कारण है वो ये है कि परमेश्वर की इमेज को हमारे जीवन के द्वारा दिखाना And grow spiritually mature in Christ. और आत्मिक जागृत होकर के परमेश्वर में बढ़ना, मसीह में Just बढ़ना। imagine a parent who sees their child, they are 3 years old, but they do not walk. तो हम देखते हैं कि वो जो माता पिता देखते हैं कि 3 साल का बच्चा 3 साल का हो गया परंतु वो चल नहीं रहा है। A child who has grown 20 years, but now he cannot do his normal household works. तो एक बच्चा जो 20 साल का हो चुका है परंतु वो अपने दैनिक प्रक्रिया को भी नहीं कर पा रहा है। Every parent wants their child to grow up. और हर एक माता पिता चाहते हैं उनके बच्चों को आगे बढ़ना। But some of the believers, they have received Christ for over 20 years but have never grown. और बहुत से ऐसे विश्वासी हैं जो 20 साल से अपने मसीह को पाया है परंतु वो आगे नहीं बढ़ पाए। They're holding on to the experience they had when they met Christ. After that, they are all lukewarm. परंतु वो केवल एक ही अनुभव पे रुके हुए हैं जो उन्हें पहले हुआ था। Imagine the heart of the Father. तो आप कल्पना करें परमेश्वर के उस हृदय को। The Bible says, for by now you have to be the teachers, but you yourself, you need the milk of the word of God. तो परमेश्वर का वचन बोलता है कि अभी तुम्हें शिक्षक बन जाना था परंतु अभी भी तुम उस दूध को पी रहे हो। Because we have not spiritually grown. क्योंकि आप उस आत्मिक रीति से आगे नहीं बढ़े हो। And that is where discipleship comes to help us. और उसी जगह पे ये चेलापन की प्रक्रिया आती है हमें मदद करने के लिए। You see, God has designed discipleship for us to grow in every area of our lives. तो हम देखते हैं कि परमेश्वर हमें इसको बनाया है चेलापन की प्रक्रिया को ताकि हम मसीह में और आगे बढ़ पाएं। Now God has designed discipleship and it happens in 2 forms. तो परमेश्वर ने इस चेलापन को 2 तरीके से बनाया है। I personally experienced, so I can tell you that. मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है तो मैं आपको बता सकता I have हूँ। a slide where we will see the difference between these तो two हमारे पास में एक discipleships. स्लाइड है जिसको मैं दिखा सकता हूँ कि हम कैसे देख सकते So the first discipleship is called secret place discipleship. हैं। तो जो पहला चेलापन की प्रक्रिया है वो है गुप्त स्थान में सीखने वाली। It is a discipleship where God directly meets with you and teaches you. तो ये वो प्रक्रिया है कि जब परमेश्वर आपसे डायरेक्टली एक गुप्त स्थान में मिलता है और आपको सिखाता God है directly will correct you and will help you to grow. और परमेश्वर आपके पास में आता है और आपको सही तरीके से बताता The है। second discipleship is called individual discipleship. और जो दूसरा वाला है वो व्यक्तिगत रूप से सीखने वाला चेलापन। Where you are getting discipled by the spiritual mature person. तो जब आप एक आत्मिक रीति से बड़े हुए व्यक्ति के साथ में सीखते हैं। So I want the church to understand it right, that what is the heart of discipleship. मैं कलीसिया को चाहता हूँ कि वो समझ नहीं पाए कि इस चेलापन की प्रक्रिया का हृदय क्या है। So in secret place discipleship, you are directly discipled by God through personal intimacy, prayer and revelation. और गुप्त स्थान में सीखने वाले चेलापन जो है वो हम सीधे परमेश्वर से सीखते हैं। But in individual discipleship, a spiritual mature person, they can be a pastor, leader, spiritual guide who will teach you from the word of God and guide you and correct you. और व्यक्तिगत चेलापन की प्रक्रिया में हम देखते हैं कि हम हमारे पास्टर से, हमारे अगुओं से हम शिक्षाओं को प्राप्त करते हैं। So these are the biblical verses that you can write down or note or take a picture so you can study yourself. हमारे पास में बाइबल की ये वचन भी है, आप लिख सकते हैं, आप पिक्चर ले सकते हैं ताकि आप खुद से इसे पढ़ पाएं। It says that let's read John chapter 5 verse 19 to 20. हम पढ़ते हैं यूहन्ना उसका Let's 5, open our 19 और Bibles. 20। John chapter 5 verse 19 to 20. यूहन्ना 5 उसका 19 और 20। Anyone who is there can read for us. John chapter 5 verse 19 to 20. सच कहता हूँ, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है। जिन कामों को वह करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। Amen. So when Jesus was on earth, the heavenly Father discipled Jesus. तो जब यीशु यहाँ संसार में था तो उनका स्वर्गीय पिता उन्हें सिखाता था। The verse says that whatever the Father showed him or whatever the Father told him, he did that. तो वचन बताता है कि जो कुछ भी परमेश्वर ने उसे बोला वो उन्होंने वही किया। So that's why Jesus used to take out time in prayer and go and spend time alone with the Father.
इसीलिए यीशु जाते थे अकेले जगह पे और वो प्रार्थना करते थे और पिता के साथ में समय बिताते थे। Because Jesus wanted to model the model of discipleship for the believers. तो यीशु चाहते थे कि वो एक उदाहरण बने हमारे व्यक्ति हम लोगों के लिए। So that is secret place discipleship. तो जो कि है एक गुप्त रूप में सीखने वाला चेलापन। 2 Timothy verse 2 verse 2. दूसरा- Chapter 2 verse 2. दूसरा तिमोथी उसका दूसरा हम वचन पढ़ेंगे। 2 Timothy chapter 2 verse 2. Chapter 2 verse 2. और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी हैं उन्हें विश्वासी मनुष्य को सौंप दे जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हो। Amen. So the Paul is saying, what you have learned from us, that you tell it to the faithful man who is going to teach others. तो पौलुस बोलता है कि जो कुछ भी तुमने मेरे से सीखा है वो जा करके तुम दूसरों को शिक्षा प्रदान So करो। you see, in the individual discipleship, you come alongside with a spiritual mature person who helps you to understand the teachings of Christ and imply that in your life. तो ये व्यक्तिगत चेलापन में हम देखते हैं कि हम जो कुछ भी सीखे हैं वो जा करके हम एक उनके साथ में बैठ करके सीखते हैं और बांटते हैं उन बातों Can I have that slide? Yes. So in a secret place discipleship, your primary teacher is the Lord, His Word, and the Holy Spirit. तो जो गुप्त रूप से सीखने वाला चेलापन है वो हमारा जो मेन शिक्षक है वो पवित्र आत्मा है और परमेश्वर है। In individual discipleship, you have a spiritual mature person who can be a pastor or a mentor or a spiritual leader. और व्यक्तिगत चेलापन की प्रक्रिया में हम देखते हैं हमारे पास्टर हमारे लीडर जो हैं और आत्मिक लीडर हैं वो लोग हमारी मदद करते हैं। The purpose of the secret place discipleship is that you have a deep intimacy with God, you have a personal transformation and getting a direct revelation from तो God. हमारा इसका जो पर्पस है वो ये है कि परमेश्वर के साथ में घनिष्ठता और अपने आप को बदलाव मिलाना। In individual discipleship, the previous slide. In individual discipleship, the purpose is that you learn the biblical principles, you learn accountability and practical Christian living. व्यक्तिगत चेलापन में हम देखते हैं कि हम बाइबल के प्रिंसिपल को सीखते हैं, लेखा देते हैं और परमेश्वर के साथ में जीवन को बिताना सीखते हैं। Many times it is not easy for us to apply certain biblical और principles. बहुत सारे समय पे ऐसा है कि बहुत सारे परमेश्वर बाइबल की जो शिक्षाएं हैं उसको अपने जीवन पे लागू करना हमारे लिए कठिन होता है। It's there, you have read it, but you don't know how to apply. आप उसे पढ़ लेते हैं, आप जानते हैं, परंतु आप नहीं जानते कि उसे कैसे अपने जीवन पर लागू It's where करें। the individual discipleship comes into help. और वो व्यक्तिगत चेलापन हमारी मदद करता है उस Next चीज slide. के लिए। So you see the examples in the Bible where it has been given that who were given into the secret discipleship तो and उदाहरण who हम are देते given हैं। into individual हम discipleship. उदाहरण देखते हैं कि व्यक्तिगत चेलापन में और गुप्त चेलापन में हमारी उदाहरण हम देखते हैं। So what is the benefit that you get in secret place discipleship? तो उसके गुप्त रूप से चेलापन की प्रक्रिया में हम देखते हैं कौन सा हमारे पास में बेनिफिट है। It strengthens your personal relationship with God and spiritual discernment. और वो हमारे परमेश्वर के साथ में जो रिश्ता है उसको मजबूत करता है। In individual discipleship, you get biblical knowledge, you get correction and practical guidance. और जो हमारा जो व्यक्तिगत रीति से चेलापन है वो हमें दिखाता है बाइबल के नॉलेज में बढ़ना, शिक्षा में बढ़ना और हमारे प्रैक्टिकल गाइडेंस को देता है वो हमें। Now what can be so when we come to discipleship, we are always bound or we are always focused to choose only secret place discipleship. और बहुत सारे समय पे हम व्यक्तिगत रीति से देखेंगे तो हम केवल गुप्त रूप से सीखने वाले चेलापन को ऊपर पे हम ध्यान देते हैं। But there is a very big challenge with that. परंतु उस पे भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। It is good that you are meeting with the Lord, you are having encounter, you are learning from the Lord. और ये बहुत अच्छा है कि आप परमेश्वर से सीख रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं और बहुत बातों को जान रहे हैं। But when there is no individual discipleship along that, what happens in time? You start to listen to your own heart. परंतु जब आपके पास में एक व्यक्तिगत चेलापन की प्रक्रिया नहीं है तो आप क्या करते हैं, धीरे से अपने हृदय को सुनने लगते हैं। What the Bible says that our heart is deceitful above all things. और वचन बोलता है कि हमारा जो हृदय है वो सारी चीजों में सबसे ज्यादा धोखा देने वाला So है। you are going to the Lord, you started well, Lord, I want to meet with you, you are reading the scriptures. और आप बहुत अच्छे से शुरुआत करते हैं, आप बाइबल को पढ़ते हैं, बहुत सारी चीजों को सीखते हैं, Then slowly what happens, you start to drift away from His परंतु presence. धीरे धीरे क्या होता है, आप उस प्रक्रिया से धीरे धीरे पीछे हटने लगते Because of हैं। the situations or because of the circumstances in your life. और क्योंकि जो परिस्थिति आपके जीवन में बनती है उसके द्वारा, And then what happens, the word of God replaces with your heart. और उसके द्वारा क्या होता है, परमेश्वर का वचन आपके हृदय से बदल जाता है।
First, you were listening to the will of the God. Now you start to listen to your will. सबसे पहले आप परमेश्वर की इच्छाओं को सुन रहे थे, परंतु अब आप अपनी इच्छाओं को सुनने लगे हैं। Because you are all alone. क्योंकि आप पूरे तरीके से अकेले हैं No one is there to question you. और कोई भी नहीं है आपसे सवाल पूछने And वाला। many people like secret place. और बहुत सारे लोग हैं जो गुप्त स्थान पसंद करते हैं, Because what you believe, what are your doctrines, nobody will question. क्योंकि आप जो विश्वास करते हैं, आपकी जो डॉक्ट्रिन्स है उस पर कोई भी सवाल नहीं And people उठाएगा। have found the way to deal with it. और बहुत सारे लोगों ने देखा है इससे डील करने के लिए। They say it's between me and God, He knows. और वो यही बोलते हैं कि ये मेरे और परमेश्वर के बीच की बातें हैं, वो जानता The है। Lord has spoken to me. परमेश्वर ने मेरे से बात किया This है is the will of the Lord. और ये परमेश्वर की इच्छा है। I feel this is what Lord is leading me to. और मैं सोचता हूँ कि यही परमेश्वर मेरे को आगे बढ़ने And के लिए बता believers रहा have है। gone one more step up. और जो विश्वासी लोग हैं इससे और भी आगे They निकल will चुके bring हैं। they will bring appropriate scripture to satisfy that thing. और उस बात को प्रूव करने के लिए वो एक वचन को लेकर के आते हैं। Why I'm telling you this? क्यों मैं आपको ये बोल रहा I हूँ? have done that. क्योंकि मैंने ऐसा किया I है। have been in that place. मैं उस स्थान पे रहा I हूँ have met many people who have been in that. और मैंने बहुत से लोगों को मिला है जिन्होंने इन चीजों को किया I है। have taken decision thinking that is the will of God. और मैंने चुनाव किया, ये बोला है कि ये परमेश्वर की इच्छा है। I even brought scripture to satisfy that will, और मैं उसके साथ में एक वचन को भी लाया हूँ telling इसको that it prove is the करने will of के the लिए। Lord. और बोलने लगा हूँ कि ये मेरे परमेश्वर की इच्छा है। But the test of time showed that it was not the will of God. और धीरे धीरे समय ने बताया है कि ये परमेश्वर की इच्छा नहीं Because थी। no one is there to question you. क्योंकि कोई भी नहीं है आपको सवाल उठाने We के just लिए। escape saying, God, it's between God and me. Why you care? क्योंकि हम कैसे भी करके निकल जाते हैं और बोलते हैं कि ये परमेश्वर और मेरे बीच की बात है। The Bible says there is a way that seems right unto man, but it leads to death. तो वचन बोलता है कि एक रास्ता है जो मनुष्य को सही लगता है, परंतु वो मृत्यु की ओर लेके We all जाता है। start well in the secret place, but ultimately it's our own will that we choose. उस गुप्त स्थान में हमने बहुत अच्छे से शुरुआत किया, परंतु आखिरी में वो हमें हमारी इच्छाओं की ओर लेके जाता And है। that is why we need individual discipleship to keep us balanced. इसीलिए हमें उस व्यक्तिगत चेलेपन की आवश्यकता है। Both types of discipleship are necessary. और दोनों तरीके का चेलापन हमारे लिए जरूरी है। The secret place discipleship, it builds a deep foundation with और God. जो गुप्त स्थान का जो चेलापन है वो हम परमेश्वर के साथ में बहुत अच्छा घनिष्ठता को But बढ़ाता है। individual discipleship, it equips you and sharpen believers through guidance and accountability. और परंतु जो व्यक्तिगत चेलापन है वो हमें सिखाता है कि A good accountability and sharpen us as believers. लेखापन के लिए हमें सिखाता है कि हमें एक विश्वासी होने के नाते कैसे लेखा को दें। So when it's from God in the secret place, तो हम देखते हैं कि गुप्त स्थान में हम क्या सीखते हैं, it will be the same in the individual discipleship. और वही चीज हम व्यक्तिगत रूप के चेलेपन में भी सीखते हैं। The word of God will not contradict from both sides. और कभी भी वचन इसमें से कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करेगा, But if it does, परंतु अगर ये करता है we need to question the path that we are taking. तो हमें अपने रास्ते पे सवाल उठाने की आवश्यकता है। So a balanced discipleship means that we carry both in our lives. तो एक जो बैलेंस चेलापन है वो दोनों के साथ में हमें करना है। So there are 5 elements of discipleship. तो यहाँ पे 5 तत्व है चेलेपन की। First is submission, पहला है समर्पण, second is transparency, दूसरा है पारदर्शिता, third is obedience, तीसरा आज्ञाकारिता, fourth is accountability, चौथा लेखापन and fifth is availability, और पांचवा being available. मौजूद रहना। So without these things, discipleship cannot happen. तो इन सबके बिना कोई भी चेलापन की प्रक्रिया नहीं हो You सकती। need it in your life so you can have a successful ये आपके discipleship. जीवन में जरूरी है, तभी आप अच्छे चेला बन So सकते हैं। discipleship is how you mature in Christ and how Christ is formed in you. तो ये चेलापन की प्रक्रिया वो बताता है कि किस प्रकार से परमेश्वर आपके अंदर पे है How Christ is formed in your thoughts, in your actions and और life. कैसे परमेश्वर आपके मन में और आपके कार्यों में दिखता है। Discipleship is not church attendance. और जो चेलापन है वो केवल चर्च में आने का अटेंडेंस नहीं है, Just coming to Sunday? No, that's not discipleship. रविवार को बस आना, ये चेलापन की प्रक्रिया नहीं है। Discipleship is not attending seminars. और चेला बनना ये नहीं है कि हम कोई सेमिनार अटेंड कर रहे हैं। Discipleship is when you come alongside with the person and you do a lifelong journey, learning to grow. चेला बनने की प्रक्रिया वो है जब हम किसी के साथ में आते हैं और वचन में बढ़ते हैं और आगे शिक्षा को प्राप्त करते हैं। So discipleship is often one-on-one. और जो चेलापन की प्रक्रिया है वो एक दूसरे के साथ में है, One-on-one with God, एक दूसरे के साथ में, परमेश्वर के साथ में, one-on-one with another spiritual mature person. और एक आत्मिक रीति से मैच्योर व्यक्ति के साथ में। And it should be consistent, personal and deep. और ये It should be consistent means continuous. हाँ, जारी रहना चाहिए। It should be personal and it should be deep.
और ये हमारा व्यक्तिगत रूप से होना चाहिए और घनिष्ठ होना चाहिए। Amen. आमीन। So discipleship is walking together for a period of time और चेलापन की प्रक्रिया वो है कि साथ में चलना, where you discuss your life challenges and you receive the answers from God. जब आप अपने जीवन की बातों को अपने शेयर करते हैं और परमेश्वर से बातों को ग्रहण करते हैं। How do babies learn to walk? और कैसे एक बच्चा चलना सीखता है? They have someone who is ahead of them. और वो देखता है कि उसके सामने जो चल रहे हैं उनको Their देखते हैं। parents वो अपने माता पिता को देखता है who are mature, जो कि मैच्योर हैं who have already lived that life, और उन्होंने पहले ही उस जीवन को जी चुका and है they give them direction and encouragement. और वो उन्हें रास्ता को दिखाते हैं और उन्हें उत्साहित करते हैं। And with the babies and parents, it takes trust. और उस बच्चे और माता पिता के बीच में एक विश्वास की आवश्यकता It होती है takes practice to grow. और वो प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है आगे बढ़ने के लिए। There will be some mistakes, but there will be success. और वहाँ पे बहुत सारे मिस्टेक हो सकते हैं परंतु वहाँ पे एक सफलता भी है। There will be distraction and interruptions, और वहाँ पे हो सकता है डिस्ट्रैक्शन भी हो, but ultimate that child will begin to grow. परंतु आखिरी में हम देखते हैं कि वो बच्चा बढ़ना शुरू करता है। That is what happens in discipleship. और वही होता है चेला बनने की प्रक्रिया में। Discipleship is not to condemn you, चेलापन की प्रक्रिया ये नहीं है कि आपको कंडेम करे, but it's to grow you and to help you. वो आपकी बढ़ोतरी के लिए है और आपकी सहायता के लिए। Let me share my life story. मैं अपने जीवन की एक कहानी को बताना चाहता हूँ। Before I came to ADC, जब मैं एडीसी में नहीं आया था I was a legalist. और मैं एक कानूनवादी था I want everything to be perfect. और मैं चाहता था सारी चीज़ें अच्छी रीति से हो I want what I say should be done as how it should be. और मैंने जो चीज़ को बोल दिया वैसे ही उन चीज़ों को मैं चाहता था। And because of my past trauma with people, I had a very hard time relating with people. और मेरे भविष्य के पास्ट की बातों के कारण मुझे ऐसा लगता था कि मैं लोगों से मिल नहीं सकता, एकदम रिलेट नहीं हो सकता। I used to have fear with people. और मैं लोगों से डरता था। If somebody calls me, I used to get palpitations. और जब मेरे को कोई बुलाता था तो मैं अंदर से घबराने लगता If था। I have to talk with someone, I will just say 2 sentences. और अगर मुझे किसी से बात करना है तो मैं केवल 2 लाइन बोलता था। What is your name and how are you? आपका नाम क्या है और आप कैसे हैं? Because I had a lot of fear. क्योंकि मेरे अंदर बहुत डर था। Joy I can relate because when I used to talk to him, I used to stand little bit behind. तो जॉय भाई को पता है जब मैं उनसे बातें करता था तो मैं थोड़ा पीछे रहता I था। had a lot of fear. मेरे अंदर बहुत डर था। And you know, it was all because of the trauma that I went through. वो केवल इसके कारण था जो ट्रॉमा मैंने पिछले समय में झेला। And for a season, I was just being alone with God. और वो केवल एक समय था जब मैं परमेश्वर के साथ में केवल अकेला था। But I had a very desperation that I need to get out of this situation. बट मेरे अंदर में एक इच्छा थी कि मैं इस परिस्थिति से बाहर आऊं। I'm seeking the word of God, but the word of God and His voice cannot reach my ears. और मैं परमेश्वर के वचन को सुनना चाहता था परंतु परमेश्वर का वचन मेरे कानों तक नहीं पहुंच पा रहा था। It was very hard for me to understand what the Lord was saying. वो मेरे लिए बहुत कठिन था जो परमेश्वर मुझे बोल रहा था उसे समझना। Whatever I'm thinking, I was always right in my sight. और जो भी मैं सोचता था कि वो सही है परमेश्वर की मेरी आंखों में। But my heart was deceiving me. और मेरा हृदय मुझे धोखा दे रहा था। But in that desperation, Lord spoke to me that in the multitude of counsel there is safety. परंतु उस परिस्थिति में परमेश्वर ने मुझसे बात किया कि बहुत सारे काउंसिल के बीच में मेरे लिए सुरक्षा है। That's where I understood I need discipleship. और तब मुझे समझ में आया कि मुझे चेला बनने की आवश्यकता है। I'm trying. मैंने कोशिश किया। I'm listening to this pastor's sermon, I'm listening to this pastor's sermon, I'm listening to this and this, but all that is happening is I'm becoming more confused. तो मैं उस पास्टर को सुन रहा था, इस पास्टर को सुन रहा था, परंतु उसके द्वारा क्या हो रहा था, मैं और भी द्वंद्व में पड़ जा रहा था। I need right kind of help. I need someone to show me the way. मुझे सही तरीके की आवश्यकता थी, सही तरीके की सहायता की आवश्यकता थी जो मुझे सही रास्ता दिखाए। So I prayed to the Lord and said, Lord, you need to help me. और मैंने प्रार्थना किया और मैंने बोला कि परमेश्वर आपको मेरी सहायता करने की आवश्यकता है। Lord opened the doors and He brought me to Indresh Hospital. और परमेश्वर ने मेरे रास्तों को खोला और वो मुझे इंद्रेश हॉस्पिटल में लेके But I आया। was very skeptical about the discipleship परंतु मैं बहुत ही संदेहवादी था इस चेलापन की प्रक्रिया के लिए। because of the trauma that I went through. क्योंकि जो ट्रॉमा मैंने बीते दिनों में झेला उसके द्वारा। Because the leadership before, they condemned me, they didn't trust me. और जो मेरे अगुए थे उन्होंने मुझे कंडेम किया और उन्होंने मेरे पर विश्वास नहीं किया। I opened up my areas of weakness, but I was condemned. मैंने अपने कमजोरियों को खोला परंतु वो मेरे को विरोध किए। And it was a very difficult season for me. और ये मेरे लिए बहुत ही कठिन परिस्थिति थी। And I'm telling Lord, I need discipleship, I need your help.
और उस समय पे मैंने परमेश्वर से बोला कि परमेश्वर मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। So in this season where I'm in Dehradun, तो उस समय पे जब मैं देहरादून में था I knew what is the core DNA of ADC, and that is discipleship. और मैं जानता था कि हमारे एडीसी का जो महत्वपूर्ण बात है वो है चेलेपन की So प्रक्रिया। Pastor Pankaj used to meet me one-on-one, और उस समय पे पास्टर पंकज मेरे से मिलते थे व्यक्तिगत रूप से, but I was very skeptical about him. और मैं बहुत ही संदेहवादी था पास्टर पंकज के I was प्रति, looking at him with the past trauma and experiences. और मैं उन्हें उन्हीं नज़रों से देख रहा था जो मेरे साथ में बीते दिनों बीते समय पे हुआ था। So you see, I need help, आप देख रहे हैं कि मुझे सहायता की आवश्यकता है, but I don't give into discipleship because what has happened. परंतु मैं अपने आप को चेलापन की प्रक्रिया से नहीं देना चाह रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ में जो चीज़ें हुई थी। And one evening when I was in that kitchen and I was praying to the Lord, और एक शाम को जब मैं किचन में था और मैं प्रार्थना कर रहा था, He said, "Son, you see that your leadership cares so much about your wholeness and freedom. तो यहाँ पे परमेश्वर ने मुझे बोला कि बेटा कि तुम देख रहे हो कि तुम्हारे जो अगुए हैं वो तुम्हारे अंदर संपूर्णता और आज़ादी के लिए बहुत ध्यान दे रहे हैं, You need to trust in me, और तुम्हें उन्हें विश्वास करना and you होगा, need to trust where I have brought you. और तुम्हें विश्वास करना होगा कि मैंने तुम्हें कहाँ लाया है, My grace is sufficient for you." और मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है। And one day, और एक दिन Pastor Pankaj came to the hospital, and we are having a chai outside of that middle block. और पास्टर पंकज उस अस्पताल में आए और हम लोग बीच में ग्राउंड पे बैठ करके हम चाय पी रहे I थे, still remember that day. और मुझे अभी भी याद है वो He दिन। was asking, "Do you feel that you want to make this church your home?" तो भैया ने बोला कि क्या आप चाहते हैं कि इस चर्च को आप अपना एक घर बना लें? Do you find yourself connecting to the vision of the church? क्या आपको लगता है कि आप इस चर्च के विजन के साथ में आप जुड़ सकते हैं? Till that time, I have not agreed on discipleship. तब तक के मैं कभी भी उस चेलापन की प्रक्रिया के लिए अग्री नहीं था, And while he is conversing with me, और जब वो मेरे से बातें कर रहे थे he said, "The grace of the Lord is sufficient for us." तब उन्होंने बोला कि परमेश्वर का अनुग्रह तुम्हारे लिए काफ़ी है, And he said, "God is so gracious towards और us." परमेश्वर हमारे प्रति बहुत ही अनुग्रहकारी बना है। And that's when I revealed to him, this is what I have been praying about. तो उस समय पे मैंने इसको जाहिर किया कि इसी चीज़ के लिए मैं प्रार्थना कर रहा था, And then we agreed on intentional discipleship on one-on-one. और तब हम लोग इस बात पे सहमत हुए उस व्यक्तिगत चेलापन की प्रक्रिया के लिए। And with being in discipleship one-on-one, there are these fears that I had started to go away. और वो जो व्यक्तिगत चेलेपन की प्रक्रिया के कारण ही जो मेरे अंदर की डर थी वो धीरे धीरे जाने लगी, That fear of people starting to go away. और जो लोगों से जो डर था मेरे अंदर वो धीरे धीरे जाने लगा। It's not about the man. वो एक मनुष्य के बारे में नहीं है, It's about the God who was working in the secret place with me, but as well as making sure that I'm balanced with the individual discipleship. तो ये वो परमेश्वर है, वो जान रहा है कि वो गुप्त स्थान में जो मैं सीख रहा हूँ वो केवल काफ़ी नहीं है, परंतु एक व्यक्तिगत चेलापन के लिए भी उन्होंने एक व्यक्ति को रखा मेरे लिए। And today I can tell you that it is very fruitful process. तो आज मैं आपको बोल सकता हूँ कि ये बहुत ही फलदायी प्रक्रिया है। Not only I read, but I also saw from his life that how he is showing grace to the people. और मैं केवल पढ़ा नहीं परंतु मैं ये देख रहा था कि किस तरीके से परमेश्वर अपने अनुग्रह को अपने लोगों पे दिखा रहा है, How he is giving people room to grow. और वो किस तरीके से अपने लोगों को वो स्थान दे रहा है आगे बढ़ने के लिए। That changed me from being a legalist to a gracious person. और उसने उस समय पे उन्होंने मुझे कानूनवादी से बदल करके एक अनुग्रहकारी व्यक्ति बनाया, Because in that discipleship, I learned that how we need to be gracious to people. क्योंकि एक चेलेपन की प्रक्रिया में उसने हमें सिखाया कि कैसे हम दूसरों के प्रति अनुग्रहकारी बने। We live in an anti-discipleship culture. और हम एक Anti-discipleship culture. चेलेपन के विरोध में के संस्कृति में जीते हैं। The world will say, "Be your own master." और जो संसार बोलता है कि हम अपने ही मास्टर हैं, The world will say, "Follow your own heart." और संसार बोलता है कि अपने हृदय को आप फॉलो करें, The world will say, "You are your own truth." और वचन बोलता है और संसार बोलता है कि तुम अपनी ही सच्चाई हो, The world will say, "You don't need to submit to anyone." और संसार बोलता है कि तुम्हें किसी को भी समर्पण करने की आवश्यकता नहीं है, The world will say, "You do not need to answer to anyone or to be with anyone." और संसार बोलता है कि आपको किसी को जवाब देने की आवश्यकता नहीं है और किसी के साथ रहने की आवश्यकता नहीं No है, one understands you what you are going through. और कोई भी नहीं समझता कि आप किस परिस्थिति से होकर के जा रहे हैं, The world will say, "You do not need to share your life with anyone. Do not trust anyone." और संसार बोलता है कि तुम्हें अपने जीवन किसी से नहीं बांटने
बांटना चाहिए, किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना The चाहिए। world will do anything to keep you away from और discipleship. संसार बहुत कोशिश करेगा आपको उस चेलापन की प्रक्रिया से दूर रखने के लिए। Today, the earth and the world, the social media is filled with information overload. और जो संसार है और सोशल मीडिया है वो बहुत सारे नॉलेज से भरा हुआ है, So there is too much of information and you don't know which pastor to follow. और बहुत सारी जानकारी उसमें भरी हुई है और उसमें हम नहीं जानते कि कौन से पास्टर को हमें देखना And चाहिए। more than clarity, it brings us confusion. और वो हमारे को क्लियर ना करने के द्वारा परंतु हमें द्वंद्व में लेकर लाता है। 30 seconds reel or seeing a social media post is not discipleship. और जो 30 सेकंड का जो रील है और जो पोस्ट हम देखते हैं सोशल मीडिया में, वो चेलापन की प्रक्रिया नहीं है। It might encourage you at a point of time, और एक समय पे हो सकता है वो आपको उत्साहित करे, but only the Lord knows where you need to work in your life. परंतु केवल परमेश्वर जानता है कि आपके जीवन में किस स्थान पे आपको काम करने की आवश्यकता Because है। the ultimate goal is to be like Him, into His image. क्योंकि हमारा गोल यही है कि हम उसके समान बने और उसकी स्वरूपता में बने। So when you are running away from discipleship, पर जब आप चेलापन से भागेंगे the area that Lord wants to deal with will never be dealt with. तो जिस स्थान पे परमेश्वर काम करना चाहता है वो कभी उस पर काम नहीं हो And you पाएगा। will continue to have struggle, for example, anger issues, emotional issues, problem with your thoughts. It will continue to be there because you are not giving into discipleship. और आपके अंदर की वो जो परिस्थिति है वो हमेशा बनी रहेगी, वो गुस्सा होने वाली परिस्थिति और भी जितनी भी परिस्थितियां हैं वो हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि आप अपने आप को चेलेपन की प्रक्रिया में नहीं दे रहे हैं। Because we are so overwhelmed with our struggles with that, we stop hearing the voice of God. क्योंकि हम अपने उस परिस्थिति से इतना भरे हुए हैं कि हम परमेश्वर से सुनना छोड़ दे रहे हैं। So it is where the secret place discipleship and individual discipleship come together to help you grow. और यहीं पे वो जो गुप्त स्थान पे सीखने वाली चेलापन है और व्यक्तिगत से सीखने वाले चेलापन साथ में आता है जिससे हम आगे बढ़ पाएं। Church, do we want to build our lives on shallow faith or deep faith? और जो कलीसिया है, क्या आप चाहते हैं कि आपका जो चेलापन है वो थोड़े से विश्वास में बढ़े या आगे गहरे विश्वास में बढ़े? Do we want to build our lives with shallow understanding of God and His Word? और परमेश्वर के नॉलेज की गहराई में आप बढ़ें या एकदम ऊपरी रीति से बढ़ें? Because our faith and understanding of God and His Word influences the decisions of our life. क्योंकि हमारा विश्वास और परमेश्वर की समझ हमें आगे बढ़ने में मदद करता You है। have complete confidence that I know the way, I know the right thing. आपके अंदर में ये कॉन्फिडेंस हो सकता है कि मैं जानता हूँ परमेश्वर को, परमेश्वर की सही चीज़ों को मैं जानता हूँ। But what if it is wrong? परंतु क्या अगर वो गलत हो तो? Do you want to wait till the time that it is too difficult to go back? तो क्या आप उस समय तक के लिए इंतजार करेंगे कि ये बहुत कठिन हो जाए जब आप वापस हो? There's one prayer that I always pray to the Lord, that Lord help me build right. तो एक ही प्रार्थना है मेरे पास में जो मैं हमेशा प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर मेरी मदद कीजिए कि मैं सही रीति से आगे बढ़ूँ। So if you want to build right, discipleship is the answer. और अगर आप सही रीति से बढ़ना चाहते हैं तो चेलापन इसका सही उत्तर If you है। don't care of your life, you don't care where your life is going, it's not for you. तो अगर आप अपने जीवन की केयर नहीं करते हैं तो ये आपके लिए नहीं है। The Bible says in 1 Peter chapter 5 verse 7, God's care for us. पहला पत्रस उसका 5:17 बोलता है कि परमेश्वर हमारा ख्याल रखता है। God cares about every season of your life. परमेश्वर हमारे जीवन के हर एक परिस्थिति का ख्याल रखता है। God cares about every struggle of your life. परमेश्वर हमारे जीवन के हर एक परिस्थिति का And ख्याल He रखता है। He wants to bring you out of those things. और परमेश्वर हमें उन सारी चीजों से बाहर निकालना But चाहता if we है। have shut down ourselves toward God and to the discipleship, how can He help? परंतु हम अपने आप को पूरी रीति से बंद कर देते हैं एक चेलेपन के लिए, तो वो कैसे हमारी मदद करेगा? We need to hand ourselves to God so He can peel off the layers. परंतु हमें अपने आप को परमेश्वर को देना पड़ेगा ताकि वो हमारे ऊपर से उन छिलकों को हटाए। Discipleship is designed by God to help us in every season of life. और चेलेपन की प्रक्रिया परमेश्वर के द्वारा बनाया गया है कि हमारे जीवन के हर एक परिस्थितियों में वो हमारी मदद करे। Discipleship is a lifelong process. और चेले बनने की प्रक्रिया जो है वो जीवन काल का प्रक्रिया है। Even if you reach the 70 years of age, God is still working you to make you like Him. और अगर आप 70 साल की उम्र में भी पहुंच जाते हैं तो भी परमेश्वर आपके साथ में काम करेगा कि आप उसकी स्वरूपता और समानता में बने। He wants us to become spiritually mature. और वो चाहता है कि हम आत्मिक रीति से मैच्योर बने। Maybe you are in a season of your teens or maybe a season of adulthood.
और हो सकता है कि आप टीनेज में हो या आप एक एडल्टहुड में हो, Maybe you are in a season where you are about to get married or you're seeking for a partner. और हो सकता है कि आप शादी के लिए तैयार हैं और आप अपने जीवन साथी को खोज में हैं, Maybe you are in a season of singlehood and you are seeing it as a curse. और अगर हो सकता है कि आप अकेले हो, सिंगल हो और आप उसको एक शाप के रूप में देख रहे Maybe you हैं, are in a season where you have a hard time relating with your husband or your wife. और हो सकता है कि आप उस परिस्थिति में हो जब आप अपने पति और पत्नी से रिलेट नहीं कर पा Maybe रहे you हो, are in a season when you are dealing with this overthinking and you need help. और हो सकता है आप उस परिस्थिति में हो कि आपके ऊपर में बहुत सारा भार हो और आपको सहायता की आवश्यकता है। God has a thing for you and that is discipleship and he wants to help you. और परमेश्वर आपका ख्याल रखता है, आपके बारे में सोचता है और वो चाहता है कि आप उस चेलेपन की प्रक्रिया के द्वारा आपकी सहायता करें। Discipleship helps you in the place of your need. चेलेपन की प्रक्रिया आपकी आवश्यकता के अनुसार आपकी मदद करता है। Discipleship draws us closer to knowing God and be like him. चेला बनने की प्रक्रिया हमें परमेश्वर के नज़दीक लाता है और उसके समान बनने में हमारी मदद करता है। Discipleship sustains us to be the life-giving river. और चेला बनने की प्रक्रिया हमें जीवन देने वाले एक नदी के समान बनाता है। Discipleship helps us to unlearn all those wrong philosophies and doctrines that we have learned through social media and people around us. और चेले बनने की प्रक्रिया हमारे उन संसारिक शिक्षाओं को, उन संसारिक बातों को हटा करके परमेश्वर की बातों से जोड़ने में मदद करता है। Discipleship sustains the spiritual awakening. और चेले बनने की प्रक्रिया हमारे अंदर पे वो उस आत्मिक जागृति को बने रहने में मदद करता है। If we have miracles, we will have crowd. अगर हमारे पास में चमत्कार है तो हमारे पास में भीड़ है, But if we have disciples, we will have future. परंतु हमारे पास में अगर चेले हैं तो हमारे पास में भविष्य है। Disciples multiply the heart of Jesus. और चेले परमेश्वर के हृदय को दुगुना करते हैं। Disciples multiply the agenda of kingdom of God into the next generation. और चेले उस स्वर्ग के राज्य को बढ़ने में हमारी मदद करते हैं। So the right way to build is through discipleship. और जो सही तरीका है आगे बढ़ने का वो केवल चेलेपन की प्रक्रिया के द्वारा है। And this is where Satan will stop you. और वहीं पे हम देखते हैं कि शैतान आपको रोकने की कोशिश He will करेगा। tell you, you do not need open up yourselves to anyone. वो आपको बोलेगा कि तुम्हें अपने आप को किसी के सामने खोलने की आवश्यकता नहीं है। They will judge you like the others. Don't trust them. वो आपको बोलेगा कि तुम उस पर विश्वास नहीं करो, वो दूसरों के समान ही तुम्हारे साथ व्यवहार Because करे, he wants you to keep struggling with that area so he can have his hold on your life. क्योंकि वो चाहता है कि तुम उसी परिस्थिति में बने रहो ताकि वो अपनी जकड़ को आपके ऊपर में बना रखे। But it's discipleship that gives you victory and helps you to succeed. परंतु ये जो चेलापन की प्रक्रिया है वो आपको विजय की ओर ले जाएगा और आगे सफलता को प्रदान करेगा। Church, we are blessed this morning to have a belief that we believe in discipleship. और कलीसिया हम लोग खुश हैं, हम लोग आशीषित हैं कि हमारे पास में ये हम चेलेपन की प्रक्रिया पे हम विश्वास करते हैं। Our church believes in intentional discipleship. और हमारा कलीसिया विश्वास करता है उस व्यक्तिगत इंटेंशनल Because we चेलापन want to पे, see you grow and to be like the Christ. क्योंकि हम चाहते हैं कि आप परमेश्वर में बढ़ें। In discipleship, और चेलेपन में cross is the starting point, चेलेपन में जो क्रूस है वो हमारी शुरुआती बिंदु है but Christ is the final destination. और मसीह है वो हमारा आखिरी गंतव्य स्थल है। So that's what we long for. और यही चीज हम सीखते हैं, To love like him, to walk like him, तो उसके समान प्रेम करना, उसके समान to चलना be like him and to be eternally be और with उसके him. समान बनना और सदैव उसके समान रहना। So church, with all of our heart, let's give into discipleship. और कलीसिया अपने पूरे संपूर्ण हृदय से अपने आप को हम चेला बनाने की प्रक्रिया पे So we भेजें। can walk in our purpose and do what God wants us to do. और तब हम परमेश्वर की उस योजना पे हम बने रहेंगे ताकि हम वो दे पाएंगे जो परमेश्वर हमारे द्वारा करना चाहता है। And at last, I want to close with the closing statement, the last slide. और आखिरी में मैं एक क्लोजिंग स्टेटमेंट के साथ में इसे खत्म करना चाहता हूँ। Be a disciple, make a disciple, and send a disciple. और आप एक चेला बने, चेला बनाएं और चेला भेजें। Let discipleship grow into the very DNA of our lives. और वो जो चेलापन है वो हमारे अंदर बढ़े। This is what Christ has done. और यही मसीह ने किया। God bless you abundantly. परमेश्वर आप सभी को आशीष दे May you be blessed by today's word. और आप सभी इस वचन के द्वारा आशीषित होने पाएं।